السلام علیکم. پرفیکٹ ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ خان. آج ایک نئے وقت نئے جگہ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. میری کوشش ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کچھ نئے اور منفرد لے کر. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہم کھیل کے حوالے سے رکھتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کھیل ہماری زندگیوں میں بہت ایک لائمل ہوتا ہے، ہماری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور کھیل سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی کے ہر معیار میں فٹ آتے ہیں. تو اسی حوالے سے آج میرے ساتھ کسی شخصیت موجود ہیں جس کو آپ سب جانتے ہوں گے، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے انہیں آج زحمت دی ہے کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس آئے تاکہ ہم بات کر سکیں بلوچستان کے نوجوانوں کے حوالے سے. کھیل کی کمی کیوں ہم محسوس کر رہے ہیں، بلوچستان میں گراؤنڈز کے کیا مسئلے مسائل ہیں، اور موجودہ جو ایک ایونٹ جو بلوچستان میں ہونے جا رہا ہے جس کو ہم کوئٹہ کا سب سے بڑا ایونٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم جانیں گے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پرفیکٹ ٹی وی چینل ایچ ڈی کا کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر فرحان خان یوسفزئی ہے. میں سینئر گرینڈ ماسٹر ہوں، بلیک بیلٹ اینڈ ڈان. ضرب مومن مارشل آرٹ فیڈریشن انٹرنیشنل کا میں ورلڈ پریزیڈنٹ ہوں، ورلڈ فیڈریشن کا. اور الحمدللہ ہمارے بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، اسپیشلی مارشل آرٹس. یہ ایک مارشل ریس لوگوں کا صوبہ ہے، یہاں پہ زیادہ تر مارشل ریس ہیں، اور مارشل آرٹس یہاں پہ اس وقت سب سے بہترین اور سب سے بیسٹ مارشل آرٹسٹ پاکستان کے بلوچستان سے پائے جاتے ہیں. اور بلوچستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں جب نیشنل گیمز وغیرہ میں گولڈ میڈلسٹ ہو جاتی ہیں تو انہیں مختلف ڈپارٹس کی طرف سے نوکریاں آفر ہوتی ہیں، لائک مختلف محکمے ہیں پاکستان میں، اور یہ وہاں پہ ایک تو انہیں جاب مل جاتا ہے اور یہ نمائندگی کرتے ہیں. اسی طرح اپنے ملک اور صوبے کی بھی نمائندگی کرتے ہیں. تو اب میرے آرگنائزیشن میں اب تک ماشاءاللہ درجنوں سے زیادہ نیشنل اور انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ پلیئرز میل اور فیمیل موجود ہیں. موجودہ ایونٹ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بلوچستان کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے، اسپیشلی سپورٹس کے لیے ایک بہت نیک شگون ہے. اور میں شکریہ ادا کروں گا گورنمنٹ آف بلوچستان کا، سی ایم صاحب کا، سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا، جنہوں نے اس میگا ایونٹ کو سپانسر کیا ہے اور اسے آرگنائز کرنے کا اعزاز ڈی ایچ اے کوئٹہ کو حاصل ہے. بلوچستان میں کسی بھی شعبے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، کسی بھی شعبے، صرف مواقع کی ضرورت ہے. اور ہمارے یوتھ ماشاءاللہ انرجیٹک ہیں، پرو پاکستانی ہیں، پاکستان سے پیار محبت کرنے والے ہیں، سپورٹ سے پیار محبت کرنے والے ہیں، امن والے لوگ ہیں. ہمارے سپورٹس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم میں کوئی فرقواریت، کوئی مذہبی، کوئی لسانی رنگ نہیں، کوئی سنی شیعہ نہیں، کوئی بلوچ، پٹھان، پنجابی، سندھی، ہزارہ، یہ نہیں. سب ایک گلدستہ ہے اور ایک پھولوں کے گلدستہ کی طرح، بھائیوں کی طرح آپس میں رہتے ہیں. جہاں تک سپورٹس کی ترقی کی بات ہے تو سپورٹس کی ترقی کے راستے میں جس طرح کے زندگی کے ہر شعبے میں ہے تو مختلف شعبوں کی طرح سپورٹس کی بھی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ، میں نام نہیں لوں گا، مافیاز قابض ہیں جو عرصہ 50-60 سالوں سے، کم سے کم 40 سال سے ایک شخص کسی بھی فیڈریشن یا ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری ہے، اور وہ قابض ہیں. وہ آگے بڑھنے نہیں دیتے، یوتھ کو آگے مواقع نہیں دیتے، اور کارکردگی وائز، رزلٹ وائز ان کا رزلٹ 0 ہے. تو میں ایک سجیشن دوں گا کہ ینگ بلڈ کو، نوجوانوں کو ہمیں آگے لانا چاہیے. میں کب تک کروں گا، آپ کب تک کریں گے، کوئی اور کب تک کریں گے؟ ہم نے نوجوانوں کو ٹرینڈ کرنا ہے، انہیں مواقع ملنے چاہیے. اور یہ جو قابض ہم نے رکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری آرگنائزیشن، ہماری ذاتی ملکیت ہے، اس سے نکل کے میرٹ پہ ٹیلنٹ کو آگے لانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ بلوچستان ہے، بلوچستان کے لوگ پیچھے ہیں، وہ پڑھنے لکھنے کا وہ معیار نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں ان میں انرجی زیادہ ہے، وہ انرجیٹک ہیں، چاہے وہ ہر لحاظ سے وہ آگے ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کھیل کا فقدان ہے، گراؤنڈز کا فقدان ہے، چیزوں کی کمی ہم پائی جاتی ہے. جب اسپورٹس بورڈ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں چیزیں صحیح طریقے سے نہیں ملتی. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ ہاں، آپ کی بات اپنی جگہ پہ بالکل وزن رکھتی ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے. نو ڈاؤٹ کہ بلوچستان کا نوجوان میل فیمیل وہ انرجیٹک ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کر دکھانا چاہ رہے ہیں، صرف مواقع کی تلاش میں ہیں.
मौके मिलने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आल दो के बहुत है, काफ़ी हद तक बेहतर है, बट मज़ीद ज़रूरत है, जितने हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से कम है। और ये फेवरेटिज़म, ज़ाती पसंद नापसंद और ये करप्शन ख़त्म हो, ये माफियाज ख़त्म हो, ओपन मेरिट पे हो, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे लिया जाए और ओपन मेरिट पे लिया जाए, तो कोई शक नहीं कि हम ओलंपिक से भी गोल्ड मेडल दे के आएंगे मुख्तलिफ शोबों में। और मेरी एक तजवीज़ ये है कि हमारे लिए सारे स्पोर्ट्स, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, सारे अहमियत की हामिल हैं। वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, जो भी है, हॉकी हमारा नेशनल गेम है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी हालत आप देख लें। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, लाइक मार्शल आर्ट्स के जितने भी किस्में हैं, वुशो, कंग फू, किक बॉक्सिंग है, इस तरह के जितने भी मार्शल आर्ट्स की किस्में हैं या जो भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, उसमें ज़्यादा मौके दें, उनके लिए इंटरनेशनल कोचेस को बुलाया जाए, इन्हें ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाए, ताकि हमारे पास ज़्यादा मेडल्स आएँ। अगर आप किसी भी एक टीम को, जिसमें 16 से 18 प्लेयर्स पे मुश्तमिल टीम होती है, वो अगर किसी भी उसमें गोल्ड मेडल भी लेती है, चैम्पियन भी बनती है, तो वो एक गोल्ड मेडल काउंट होते हैं, वहाँ पे आपके करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसी तरह अगर आप मार्शल आर्ट के 16 प्लेयर्स पे तवज्जो देंगे तो उन पे अखराजात भी कम आएंगे और आपके लिए 16 मेडल आने के 100% चांसेस हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप हमें बता सके सालाना हिसाब में बलूचिस्तान के लिए कितना बजट होता है और वो कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होता है? ये फिगर, चूँकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे या इस तरह की उससे कोई मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो फिगर जितना भी है अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर उसी फील्ड में वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो पैसा वो सेहत के हवाले से हो, मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने पीएचडी की है एक्यूपंक्चर में। स्पोर्ट्स मेडिसिन में मैं आईयूएससी क्वालिफाइड हूँ। स्पोर्ट्स मेडिसिन में मेरे पास मैं डॉक्टर हूँ स्पोर्ट्स मेडिसिन का। मैं आईयूएससी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स किया है, क्वालिफाइड हूँ। ये एक एजाज़ की बात है। मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ हैसियत से, ग्रास रूट लेवल में, खिलाड़ी से लेके एक ऑर्गेनाइज़र तक, एक इंटरनेशनल रेफरी, जज तक, कोच तक मैंने नुमाइंदगी की है। सर कोई शक नहीं, आप हमारा सरमाया है, आप हमारी कौम के लिए आपने काम किया है, आप हमारा सरमाया है, इसमें कोई शक नहीं। सर अगर एक और चीज़ हम देखें, बलूचिस्तान के जो नौजवान यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं लाहौर, पंजाब और सिंध की तरफ प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ बलूचिस्तान और वहाँ जाके उनको क्या फ़र्क देखने को मिलता है? यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा ज़्यादा, हमारे पास जो ग्रांट या फंड, वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं मिलता। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो ओहदेदार वाला सिस्टम है, स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए, मेरी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट से एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो ABC कैटेगरीज रखे, इसको आप रिवाइज कर दें, आप मेरिट पे कर दें और आप टैलेंट के हिसाब से कर दें। कि सपोज़ आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन अगर A+ में है और मुझे 5 लाख रुपए सालाना फॉर एग्जांपल ग्रांट मिल रही है, तो ये इसके साथ मुंसलिक हो कि अगर मेरे मेडल्स आ रहे हैं नेशनल और सूबाई लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, मेरे खिलाड़ी सिलेक्ट हो रहे हैं, मेरी कारकर्दगी बेहतर है, तो आप उसको 10 लाख कर दें। लेकिन अगर मेरी कारकर्दगी ज़ीरो है, सिर्फ ग्रांट्स तक हैं हम, और यहाँ पे ट्रेनिंग करनी, और मेरे लड़के लड़कियाँ बच्चे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं कर सकते, सिर्फ खाना पूरी के लिए हम जा रहे हैं, तो इसको D कैटेगरी में लाए। वो 5 लाख को आप 50,000 25,000 पे लाए, ये इससे मुंसलिक किया जाए तो एक जज्बा भी उठेगा, एक मुकाबला भी होगा पॉजिटिव कि जी हमने कारकर्दगी दिखानी है तो हमें ग्रांट्स मिलेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा ग्राउंड्स और इंडोर गेम्स के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए बनाए जाए कम है, ताकि नौजवान यूथ जो है वो टेररिज्म से बचें, मनशियात से, समाजी बुराइयों से दूर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड्स के हिसाब से हैं। कल जो इवेंट होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमारे वुशो कंग फू के खिलाड़ी अपने फ़न का मुजाहिरा करेंगे, जिसमें 2 फाइटें हैं, एक मेल और एक फीमेल, जिसको हम सांदा कहते हैं, और एक तावलू है जो ख्याली फाइट। उसमें हमारे प्लेयर्स जो मुख्तलिफ वेपन उसको
दावशो, नांदाव वगैरह जो टेक्निकल नाम है वो करने में, यानी उसमें 2 किस्म की तलवारें और लाठी चलाने का भी मुजाहरा करेंगे, और कातास का जो आपने चाइनीज़ फिल्मों में देखा होगा। इसी तरह किक बॉक्सिंग में किक बॉक्सर की फ़ाइट है। कराटे में हमारे बोंकाई जो कराटे काता जो ख्याली फ़ाइट है, फिर उसका डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि इसका मकसद क्या है, वो मुजाहरा होगा। और सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिशियल्स हैं इस टीम में शामिल हैं। इस टीम में जितने भी आए हैं लड़के और लड़कियां, वो अपने बेहतरीन फ़न का मुजाहरा आप देख लेंगे, उसका मुजाहरा करेंगे। इसके बाद हमारे पास जिम्नास्टिक और एरोबिक्स में लड़के और लड़कियां करेंगे। हम चाह रहे थे कि आर्चरी भी शामिल हो इसमें, बट वो चूँकि एक हथियार की शक्ल में आ रहे तो वो कुछ SOPs हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम शामिल नहीं कर पाए, बट वो भी हिस्सा है मार्शल आर्ट्स का। सर, अगर हम एक चीज़ देखते हैं, अक्सर सुनने में भी आती है कि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो शाम के वक्त जाकर खेलते हैं और सुबह के वक्त अपने कामों में लगे होते हैं, काम करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। क्या ये बात सच है? इसमें कोई हकीकत है? ये 200% दुरुस्त आपने फरमाया। जैसे आपने पिछले सवाल में भी कहा था कि बलूचिस्तान के प्लेयर जब दूसरे सूबों में जाते हैं, वहाँ पे बनिस्बत बलूचिस्तान के उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, उनको फैसिलिटीज़ हैं, उनको जॉब्स मिलती हैं, उनको एडमिशन मिलते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं। मैं वसीम की मिसाल दूंगा जिसके एजाज़ में ये सारा सब कुछ हो रहा है। बॉक्सर वसीम जो हमारा हीरो है, बहुत गरीब घराने से, वो रक्षा ड्राइविंग का भी काम किया उन्होंने। तो हमारे अब भी ऐसे प्लेयर्स हैं कि दिन में वो रोज़ाना करते हैं, मजदूरी करते हैं, रेडी चलाते हैं, किसी शॉप पे एज ए सेल्समैन काम करते हैं, या वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं और शाम को आके वो मेहनत करते हैं। और अपने उनके पास ना प्रॉपर किसी किस्म की भी फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है, लेकिन वो ज़ाती मेहनत पे, अल्लाह पे भरोसा करके वो टैलेंट दिखा रहे हैं। अगर हम जिम्नास्टिक की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें या कराटे की बात करें, कि एक नौजवान को कितना वक्त लगता है एक वाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक जाने के लिए, या थोड़ा सा बेल्ट के बारे में बताइए कि पहले कौन सा बेल्ट होता है और आखिरी बेल्ट तक जाने में कितना वक्त लगता है? जी, इसमें चूँकि डिफरेंट स्टाइल्स हैं। कराटे में बेल्ट सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है वुशो में। किक बॉक्सिंग में कोई ग्रेडिंग और बेल्ट वाइज नहीं है, वो सीनियर जूनियर का होता है। इसी तरह इसमें वाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक, वाइट बेल्ट है, येलो बेल्ट है, ऑरेंज बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, ब्राउन बेल्ट है। ताइक्वांडो में रेड बेल्ट आते हैं, ब्राउन में 1 2 3 उसके स्टेजेस हैं। फिर ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान आते हैं, फिर ब्लैक बेल्ट सेकंड डान, थर्ड डान। उसमें इतने टाइम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये एक प्लेयर पे, मेल फीमेल पे भी डिपेंड करते हैं। कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड होते हैं, जल्दी पिक करते हैं, कोई 3 साल में बेहतरीन ब्लैक बेल्ट बन जाते हैं, किसी को 4 साल का अरसा लगता है, कोई 2.5 साल में भी बन जाते हैं। और ये डिपेंड करते हैं उसके स्ट्रक्चर्स की काबिलियत पे भी, उसकी मेहनत पे भी डिपेंड करते हैं, और प्लेयर की कि वो कितना रेगुलर, कितना पंक्चुअल है और कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में, सेटअप में जितने भी आए हैं, वो उन्होंने नाम कमाया है अपने सूबे के लिए भी, अपने क्लब के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी। सर, अगर आप मुझे बता सके, जो यूनिफॉर्म आपने पहना है जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा, चांद और सितारा बना हुआ है, इसे देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, यूनिक लगता है। इस वर्दी को कमाने में कितना वक्त लगा? आपको कितना लगा? और अगर जल्द से जल्द जिसको चाहिए होती है उसको कितना वक्त लगता है? अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं आपको इस यूनिफॉर्म में देखता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि काश मेरे पास भी एक यूनिफॉर्म हो ऐसी, लेकिन मैं जानता हूँ इसे कमाना आसान नहीं। कितना वक्त दरकार होगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जहाँ पे मेहनत है वहाँ पे लक भी है, दोनों साथ साथ हैं। आपको 4 साल से लेके 10 साल तक का टाइम चाहिए होता है कि आप कब नेशनल टीम में सिलेक्ट होकर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। और चूँकि जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं तो ये एजाज़ उनके लिए है, जिसे हम फ़ख्र से, इस सब हलाली परचम को हम फ़ख्र से पहनते हैं। ये एक स्पोर्ट्स की दुनिया में एक एजाज़ है। दूर से सैकड़ों, थाउजेंड्स के हिसाब से प्लेयर्स लोग हों तो पहचाना जाता है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल है। ब्लेज़र जो हमें मिलते हैं पाकिस्तान कलर का, ग्रीन ब्लेज़र पे, और वो भी उस पर फ्लैग और ये बना होते, तो साथ ये ट्रैक सूट है, तो बहुत एजाज़ की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब स्कूल में था 1987 में, तो फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान की टीम के साथ मलेशिया गया हूँ जब मैं छोटा बच्चा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आगाज़ हुआ है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, लास्ट में 2019 में बाकू
आज़रबाईजान गया हूँ। तो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे भी मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में एज ए प्लेयर, एज ए ऑर्गेनाइज़र, एज ए कोच, एज ए टीम मैनेजर, एज ए इंटरनेशनल रेफरी, जज वगैरह इसके कोर्सेज़ होते हैं, वो मिलते। तो डिपेंड है खिलाड़ी की मेहनत पे। बिल्कुल सर, मेहनत लाजमी है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सर अगर कल की बात की जाए, 10 मई को कोयटा कैंट में एक फंक्शन होने वाला है, उसके बारे में आपने थोड़ा सा पहले बताया, लेकिन अब थोड़ा सा तसल्ली से आप बताइए, तफसील से बताइए कि इसके स्पॉन्सर किसने किया, ये कहाँ पर होने जा रहा है और कितने लोग होंगे? क्या सिर्फ बलूचिस्तान कोयटा के लोग इसमें होंगे या बलूचिस्तान के दूसरे सूबे जो हैं वहाँ से भी लोग आएंगे इसमें? जी बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैंने जिक्र भी किया कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इसे स्पॉन्सर किए हैं माली तौर पे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डेफिनेटली स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स का फंक्शन है। सीएम साहब की ज़ाती इंटरेस्ट इसमें शामिल है, ख्वाहिश शामिल है, और इसे पाकिस्तान आर्मी का जो अदारा पाकिस्तान DHA कोयटा वो ऑर्गेनाइज़ कर रही है सारा इवेंट। उसमें मेहनत बागदौड़ वो DHA कोयटा का है, स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है, और बलूचिस्तान के कोने कोने से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पेशली मार्शल आर्ट से रिलेटेड प्लेयर्स कोयटा तशरीफ़ लाए हैं। और इसकी चूँकि टिकटें ऑनलाइन भी बिक चुकी हैं, पासेस वगैरह का भी हो गया है, तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। और इससे एक एनर्जी, एक जज्बा पैदा हुआ हमारे बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स में। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स के इस तरह के मज़ीद मेगा इवेंट्स का इनेकाद करेगी। सिर्फ बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट नहीं, तमाम स्पोर्ट्स का तवज्जो इन पे ज़्यादा हो। तो इस तरह मेगा इवेंट्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और पाकिस्तान के दिगर सूबों से भी इसमें जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग आ रहे हैं, जो पहुंच सकते हैं। एक प्रोसीजर इन्होंने दिया था, ऑनलाइन कर दी थी, टिकटें इनकी बिकी हैं ऑनलाइन, तो वो जिन्होंने परचेज़ की हैं उनको टिकट मिले, और वो बड़े अच्छे तरीके से, उनमें कोई सीट नंबर भी उनको अलाट होंगे, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहे हैं। इसकी रिहर्सल जारी है पोलो ग्राउंड में। पिछले 2 हफ्तों से हम रिहर्सल में मसरूफ़ हैं। तो बड़े अच्छे और दोस्ताना माहौल में, एक फ्रेंडली माहौल है, एक बड़े अच्छे अंदाज से इसमें हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और इसमें चूँकि DHA ने हमें खिलाड़ियों के लिए स्पॉन्सर किया है, हमें ट्रैक सूट्स, आप देखेंगे कि खिलाड़ी परेशान भी है, खुशी से परेशान है कि सर हमें तो कभी इतने बेहतरीन, इतने आला क्वालिटी के ट्रैक सूट्स कभी नहीं मिले। जब नेशनल गेम में भी गए, दूसरे सूबों में भी गए, तो बेहतरीन क्वालिटी के उनको 3 पीस ट्रैक सूट्स, जिसमें T-शर्ट भी शामिल है, जहाँ पे DHA का लोगो भी है, जहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी है, इस इवेंट का लोगो भी है। और इसमें हमने अच्छे क्वालिटी के जोगर्स दिए हैं प्लेयर्स को। हमने जोगर्स के साथ पहनने के लिए सॉक्स दिए हैं, नीचे पहनने के लिए मेल फीमेल गारमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं वो हमने इनको दिए हैं। हमने प्लेयर्स को जिनको ग्लव्स की ज़रूरत थी फाइट दिखाने के लिए, हमने उनके लिए ग्लव्स खरीदे हैं। ग्रीन हिल कंपनी बेहतरीन, मैंने इसलिए नाम लिया कि बेस्ट कंपनी है, तो आप चाहें तो उसको कर सकते हैं एडिट, नाम मेरे मुंह में आ गया। तो बेस्ट क्वालिटी के महंगे वो ग्लव्स भी हमने दिए उनको। इंटरनेशनल जो अप्रूव्ड यूनिफॉर्म है कराटे का, वुशो का, वो हमने इनको प्रोवाइड कर दिए। उसमें हमने चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड्स, शिन गार्ड, सेफ्टी जितने भी चीज़ें हैं। वेपन्स में जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, तलवारें परचेज़ किए जो सिर्फ चाइना से आती हैं, चाइना से बन के आती हैं, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, वो हमने प्रोवाइड की। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप आएँ, विज़िट करें। मेरे एक एक खिलाड़ी से इंडिविजुअली पूछ रहे, मैं उनको डेली रिफ़्रेशमेंट के लिए भी दे रहा हूँ, डेली रिफ़्रेशमेंट के लिए भी मैं उनको एक अमाउंट दे रहा हूँ। आप इंडिविजुअली पूछ लें कि जी जो आप लोगों के सीनियर ग्रैंड मास्टर साहब ने फरमाया था, क्या वो कोई उसमें दोगलापन या कोई झूठ या कोई और बात तो नहीं है कि आप लोगों को ये चीज़ें मिली हैं। तो इसके लिए हम DHA कोयटा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इसके लिए स्पॉन्सर की, और DHA कोयटा को गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने स्पॉन्सर किया, हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप टिकट्स के हवाले से हमें बता सकें कि अब तक मौजूदा 2 वक्त में कितनी टिकट्स सोल्ड आउट हो चुकी हैं, कितनी टिकट्स बिक चुकी हैं, अगर आपके पास कोई एक रेफरेंस या कोई एक अंदाज़ा? हाँ, इस हवाले से मेरे पास कोई फिगर नहीं है कि कितने हुए, लेकिन जितने इसके डिफरेंट पॉइंट्स बने थे, फ्रेंचाइज बने थे, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता शायद कोई टिकट बच गया होगा। सर प्रोग्राम अपने आखिरी मराइल में है, हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है,
بلوچستان میں اسپورٹس کا بہت وقت کے بعد ایک ایونٹ انعقاد ہونے جا رہا ہے. اس کو ایک آخری مراحل میں آپ بتائیے کہ بلوچستان کے نوجوان جو اکثر نشے وغیرہ میں لگ جاتے ہیں, اسپورٹس کا فقدان ہے, گراؤنڈس کی کمی ہے, ان کے لیے یہ ایونٹ کیسا ہوگا, اور وہ بچے جو آج اس اسپورٹس کے بدلے سے نکلیں گے ان کے لیے آگے کیا فیوچر ہوگا؟ یہ ایک پازیٹیو خوشی کا پیغام ہے بلوچستان کے. یہ جو بچے آج اس میں شامل ہیں, ان کا دیکھا دیکھی دوسرے جو سپورٹس کے ہیں وہ بھی انرجیٹک ہوئے ہیں, وہ بھی خوش ہیں, ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم بھی ہوتے یہاں پہ. تو ایک نیا جذبہ اور ولولہ بلوچستان کے تمام سپورٹس میں, اسپیشلی مارشل آرٹس, باکسنگ, انڈور گیمز میں ایک نیا ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا ہے کہ جی اس طرح ہم بھی محنت کریں گے تو اس طرح میگا ایونٹس ہمیں ملیں گے. اور نوجوان کو ایک ماحول چاہیے. اگر انہیں سپورٹس کے مواقع ملے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جان بوجھ کے کسی نشے کی لت میں یا کسی غلط سوسائٹی میں بیٹھتے. صرف اس کی تربیت کی ضرورت ہے, اس کو سرپرستی کی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں پہ, یہ قوم کا مستقبل ہے, یہی نوجوان آگے قوم کا باغ دوڑ سنبھالیں گے, ملک کا باغ دوڑ سنبھالیں گے. ایک اچھے شہری, ایک مفید, مختلف فیلڈ میں, زندگی کے مختلف شعبوں میں ایک اچھے کامیاب انسان ثابت ہوں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے آخر میں ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ایچ ڈی چینل کا کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع فراہم کیے. شکریہ. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بلوچستان میں اور پاکستان میں اسپورٹس کا انعقاد لازمی ہے, کیونکہ اگر اسپورٹس نہیں ہوتے, کھیلوں کا رجحان نہیں ہوتا, تو نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ مختلف نشوں کی طرف چلے جاتے ہیں, مختلف اور کاموں کی طرف چل جاتے ہیں. اگر وہی یہ ایفرٹ اسپورٹس کی طرف لگائیں تو ان کا دھیان بٹا رہتا ہے, جسمانی صحت اور ورزش ہوتی رہتی ہے. تو آج اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پرفیکٹ ٹی وی ایچ ڈی. ہمیں سبسکرائب کرتے رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.